Hello students, welcome to the next lecture on the CSR Net Mathematics. Today I will explain you how you can solve the Lagrange and the Cauchy partial differential equation in just the 15-second time periods. Myself Dr. Harishkar, you can follow and subscribe my YouTube channel. Now, whenever you have a first order, first degree, any question related to the first order and the first degree, then you can apply my today's shortcut tricks lecture and you can get the answer in just a 15-second time periods. Make sure आज का लेक्चर CSR नेट एज वेल एज द गेट एग्जामिनेशन दोनों के लिए एप्लीकेबल है. जो शॉर्टकट ट्रिक्स यू कैन लर्न from the today's lecture you can apply on the CSR net as well as on the gate, or you can apply on the any of the other competition examination. Make sure students, whenever you have the first order first degree, which can be defined as P into del Z by del X plus Q del Z upon del Y is R, where P, Q and R are the functions of the X, Y and Z. Make sure students, कई बार कई नोटेशंस, कई बार कई बुक्स और कई कंपटीशन एग्जामिनेशन में इंस्टेड ऑफ टेकिंग एज ए जी दे आर टॉकिंग अबाउट द यू, फाइन, और you can write instead of the y they are talking about the t. So that's the same notation, there is no difference. Whatever the approach I will tell you, you can replace z with the u, y with the t. Make sure in this case x and y are my independent variables, fine, and z is my dependent variable. लेकिन अगर आपके पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, then your x and t are my independent variables and u is my dependent variable. How you can solve this first order first degree partial differential equation? First of all, what is the difference between the Lagrange and the Cauchy? How you can recognize in your examination whether the question is related to the Lagrange partial differential or the Cauchy? If some initial condition is given to you in the given problem, like z of x comma 0 is e की power x and so on, whenever the initial condition is given to you, then it is called as a Cauchy problem. और अगर initial condition given नहीं है, then we call as the Lagrange partial differential equation. And how we can solve either the Lagrange or the Cauchy? We have always start with the Lagrange auxiliary equations. After solving these two equations, we can get the two solutions C1 and C2. But make sure students, जब भी आप C1 and C2 निकालो, इन दोनों में से U and V में से कहीं ना कहीं एक में, कम से कम एक में आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होना बड़ा जरूरी है. फाइन. फॉर मोर डिटेल्स अबाउट द थ्योरी, you can watch about my partial differential equation playlist, Lagrange equations type 1. इन सब में मैंने ऑलरेडी शॉर्टकट ट्रिक्स के साथ ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है. मैंने ऑलरेडी पीवाई क्वेश्चन ऑफ द Cauchy प्रॉब्लम्स भी अपलोड करा हुआ है फॉर यू. फाइन, यू कैन वॉच इट एंड लर्न द कंसेप्ट इजीली. अगर आज आपको आज के लेक्चर में कोई भी कंसेप्ट नहीं समझ में आया, इसका मतलब आपने ये थ्योरी लेक्चर मिस करा होगा. यू मस्ट वॉच इट द थ्योरी लेक्चर्स एंड गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट इन अ सिंपल मैनर. If you want to join with me, you can scan and join my free WhatsApp group. This is a 5th WhatsApp group. Fine. एक और स्टूडेंट्स, आप तब तक इस ग्रुप में ऐड हो सकते हो जब तक इस ग्रुप में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फुल नहीं हो जाते. अगर आपकी रिक्वेस्ट 3 डेज के अंदर एक्सेप्ट नहीं होती, लेकिन एक्सेप्ट होने से पहले यू हैव टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल. फाइन. अगर आपने सब्सक्राइब भी करा और अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं हो रही, दैट मीन्स ये आप 5th WhatsApp ग्रुप आपका पूरा फुल हो गया हुआ है. यू कैन वॉच द वीडियो. आज के बाद मैं जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा उसमें देखिए 6th CSR नेट व्हाट्सएप ग्रुप मैंने आपको लिंक दिया होगा. यू कैन स्कैन एंड ज्वाइन दी ग्रुप. चलिए, सबसे पहले मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स बता देता हूं. व्हेनेवर यू हैव द Lagrange और द Cauchy प्रॉब्लम, देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द प्रॉब्लम आई कैन डिस्कस. द फर्स्ट वन इज व्हेन द कोफिशिएंट a, b and r all are my constants, and or second case is whenever a, b and r are the functions of the x, y and the z. यहाँ पे u है तो सभी जगह पे u होगा.
अगर z है तो हर तरफ से z होगा। जब भी आपको कांस्टेंट कोफिशिएंट दिखाई दे तो आपको कौन सी थ्योरी के ऊपर अप्लाई करना, मेरा इसी प्लेलिस्ट में जो मैंने इसके बाद अप्लाई करा था आपके पास, होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस, यू कैन सी होमोजीनियस एंड द नॉन होमोजीनियस, तब आपको ये वाले लेक्चर अप्लाई करने हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं अगर आप मेरा शॉर्टकट ट्रिक्स को फॉलो करोगे तो आपको थ्योरी भी मेरी ही फॉलो करनी पड़ेगी, सो दैट यू कैन इजिली अंडरस्टैंड द मेथोडोलॉजी व्हाट आई एम थिंकिंग टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। जब भी आपके पास कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा यू कैन राइट कैपिटल डी एज डेल अपॉन डेल एक्स एंड डी प्राइम टू बी डेल अपॉन डेल वाई। तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी, दैट विल बी ए ऑफ डी प्लस बी इंटू डी प्राइम ऑफ यू इज इक्वल टू आर। Is it fine? Now, once you know, then you all knows how you can write the complementary functions plus particular integral. But I will tell you the easiest way you can write, depending whether they are homogeneous or non-homogeneous. If it is homogeneous, I can write as a y minus bx. Fine. Make sure पहले नंबर पे कैपिटल D होना चाहिए, D प्राइम पीछे होना चाहिए. So you can write a into y. अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, plus into particular integral. Fine. And how you can find the particular integral? मैंने already shortcut tricks आपको इन 5 lectures में already provide करी हुई है. Type 1 particular integral, Type 2 particular integral, 3, 4 and 5 lectures. Fine. इसमें already मैंने shortcut tricks आपको apply करी. And whenever the coefficients are variable, then you can always apply start from the Lagrange equations and get the solution. समझ गए? तो आपकी जो शॉर्टकट ट्रिक्स है वो आपके स्क्रीन के सामने खुली हुई है। क्लियर? अब हम चुटकियों से सॉल्व करते हैं। पहले 2-3 क्वेश्चन को आई विल टेक अ टाइम एंड आफ्टर दैट आई कैन गेट द 15 सेकेंड टाइम पीरियड्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड द जून 2015। यू कैन सी द कोफिशिएंट्स आर माई कॉन्स्टेंट्स, द राइट हैंड साइड इज माई 0, तो आपका सोल्यूशन क्या होगा, u इज 5। फाइन, इसको मैं क्या लिखता हूं, d प्लस 2 ऑफ d प्राइम, फाइन, विच इज इक्वल टू 0। तो आपका 5 ऑफ y माइनस 2x, बिकॉज राइट हैंड साइड इज 0, सो pi विल बी 0। तो आपका आंसर हो गया। अब ये इनिशियल कंडीशन फिल कर दो यहाँ पे। सो 4e की पावर माइनस ऑफ 2y, x इज 0, फाइन। तो इसका मतलब 5 ऑफ y, तो यहाँ पे फिल कर दो वैल्यू, y की वैल्यू फिल कर दो, y माइनस 2x e रेज़ टू पावर 2 y माइनस, अब आपको किसका सोल्यूशन पूछा है, 1,1 पे, तो u ऑफ x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, so that will be 1 minus of 1 minus minus plus 4e square is the right answer of the problem. तो आप देखो कितना मैंने स्क्रीन पे लिखा, जस्ट 2 लाइन लिखी है एंड देन यू कैन गेट द आंसर। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। अगेन यू कैन सी द कोफिशिएंट्स आर माय कांस्टेंट्स, आई कैन राइट एज ए कैपिटल D, इसको मैं लेफ्ट साइड पे ले जा रहा हूं, कैपिटल D प्राइम ऑफ f इज इक्वल टू 0। Then now instead of the u it's my f which is equal to 5, find y, अगर माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, एंड बिकॉज राइट हैंड साइड इज 0, सो pi विल बी 0 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब आप देखो क्लियरली, इसको मैं ये भी लिख सकता हूं ना, f ऑफ x, y इज अ फंक्शन ऑफ द एक्स वाई। सो क्लियरली से द फंक्शन f इज माई सिमेट्रिक, फाइन। अगर तो ये फंक्शन सिमेट्रिक है तो डी ऑप्शन तो आपका पहले ही कैंसिल हो गया। लेफ्ट हैंड साइड आपका x प्लस वाई बनेगा, राइट हैंड साइड विल बी माइनस वाई प्लस एक्स विच इज नॉट इक्वल। f of x comma y is 0 for all x comma y, that's strong. If you take x is 1, y is equal to 2, then clearly say f will be phi of 3, which is not always 0. Phi can be any arbitrary function. F is a constant whenever x is equal to minus y. So if we substitute x is equal to minus y, that will be phi of 0. It is independent of x and y. That will give you the constant result. Look at the first options. Phi, f of x comma y. What is the left hand side? Left hand side is 0 because f is symmetric. तो अगर ये symmetric है, ये symmetric है, तो ये common आ जाएगा. Partial derivative of f with respect to x is a phi prime. Again, it's a phi prime. It's a constant. So phi prime is outside. That will be x minus y plus y minus x, which is 0. Right hand side, left hand side, both are my 0. Yes, it is my true. So therefore, A and B are the correct answers.
चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन, इस जून 2018। चलिए इसको क्वेश्चन को देखिए, देखने में लग रहा है कि इट्स अ वेरी लेंथी क्वेश्चन, बट लेट मी टेल यू द वन ऑफ द वेरी वेरी सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स। whenever you have, now you can see इसे u है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फाइन। इसे डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू 0। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, बिकॉज दे आर द कांस्टेंट कोफिशिएंट्स, तो पहले कैपिटल D प्लस 1 इंटू डी प्राइम ऑफ u इज इक्वल टू 0, फाइन। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा आपके पास, फाई ऑफ ए वाई, वाई इन द सेंस ऑफ द t माइनस x, फाइन। और I can write the function is phi of x minus 8, फाइन। अब आप इस वाली इक्वेशन को हमेशा याद रखिएगा जब भी ये आपके पास इक्वेशन हो, phi of x minus 8। ये तो पहला टिप्स हो गया आपके पास। अब सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट टिप्स जो है आपके पास है, ये आपको कोई नहीं बताएगा, फाइन। ओनली आई विल टेल यू द शॉर्टकट ट्रिक्स। ऑलवेज रिमेंबर, whenever your initial condition is x, 0 is something, और आपकी इक्वेशन आपके पास ये वाली हो, then your solution will always in the form of the k into x, provided k is my greater than or equal to 0। ये टिप्स आप अपनी कॉपी पे बड़े बड़े अक्षरों में लिख कर रख लीजिए आप, फाइन। whenever you have u of x, 0 is something, और ये इक्वेशन आपको दे रखी हो, आपका सॉल्यूशन हमेशा और हमेशा ही u x, 0 इज इक्वल टू के एक्स होगा एंड k मस्ट बी पॉजिटिव। समझ गए? करें सॉल्व आप क्वेश्चन को। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं 5 सेकंड के अंदर। सबसे पहले सॉल्यूशन है, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, फाई ऑफ x माइनस 8। इज इट ओके? अब आपका सॉल्यूशन x, 0 है, इसका मतलब u नॉट आपके पास किस फॉर्म का होगा, इट इज माई kx की फॉर्म का होगा। क्लियर? देन यू कैन लुक अबाउट दी फर्स्ट ऑप्शन। इफ देयर एग्जिस्ट अ बाउंडेड फंक्शन u, तो आप इस फाई का मतलब बेसिकली क्या है, u नॉट। इनिशियल कंडीशन अप्लाई करो, सो यू विल गेट u इज u नॉट ऑफ x माइनस 80, फाइन। दैट मीन्स यू हैव टू वेरिएबल्स, वो किसको मैप कर रहा है आपके पास, सिंगल वेरिएबल के अंदर। अब आप देखिए बाउंडेड फंक्शन कब होगा, व्हेन k इज इक्वल टू 0, फाइन। अदरवाइज x तो आपका r में है, तो k इज इक्वल टू 0 बाउंडेड है। अगर आपका u0 इज बाउंडेड, दैट मीन्स इट विल बी लेस देन ऑफ समथिंग, फाइन। कैन यू से u इज अनबाउंडेड, नो, तब भी आपका u भी बाउंडेड हो जाएगा ना, तो S1 इज माई फॉल्स स्टेटमेंट। सेकेंड ऑप्शन, अगर आपका u0 वेनिशिस है, दैट मीन्स u0 इज माई 0, तो इसका मतलब क्या होगा, u is also 0, so u also 0 vanishes, that's a true। S1 is false, S2 is okay, ये दोनों is also false आएगा ना, also लिखा हुआ है, so the right answer is C is the correct answer। मैं बच्चों बार बार कह रहा हूं, इस शॉर्टकट ट्रिक्स को अपनी कॉपी पे बड़े अक्षरों में लिख के रख लीजिए, प्रोवाइडेड t आपका पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? और आपका सोल्यूशन यही आए। चलिए लुक एट दैट अगेन, दे आर द कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। इसको क्या लिख सकता हूं, d प्लस 2d प्राइम ऑफ u इज इक्वल टू 0। तो आपका सोल्यूशन क्या बन गया, फाई ऑफ, इस विद रिस्पेक्ट टू y है, y माइनस 2x, राइट हैंड साइड 0 है, तो pi भी 0 हो गया। नाउ फर्स्ट फॉर द केस सब्स्टिट्यूशन कर दो, साइन x विच इज इक्वल टू फाई ऑफ y इज माई 3x माइनस ऑफ 2x, फाइन। तो इसका क्या मतलब होगा, अगर मैं इसको कैपिटल A ले रहा हूं, दैट मीन्स आई कैन टेक कैपिटल A इज x प्लस 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a माइनस 1। तो आई कैन सब्सटीट्यूट द केस, u इज इक्वल टू फाई ऑफ a विल बी साइन ऑफ y माइनस 2x माइनस 1। क्लियर? अब इसी तरह से सेकेंड पार्ट, ये सेम इक्वेशन है, इंस्टेड ऑफ द v है आपके पास, कंडीशन इज माई साइन x, इंस्टेड ऑफ द साइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, तो यहां पे कंडीशन आपके पास है साइन x विच इज इक्वल टू फाई, y इज इक्वल टू 0, x विल बी x, इट्स माइनस ऑफ 2x। तो अगर मैं इसको a का नाम लू, सो दैट विल बी माइनस ऑफ a बाई 2, यही बनेगा ना आपके पास। तो आई कैन सब्सटीट्यूट दैट v विल बी माइनस
साइन ऑफ y minus 2x divided by 2. Now you can get the two different solutions. क्लियर? अब क्वेश्चन देखते हैं क्या s क्या कह रहा है आपके पास, एक रिटेंगल है 0 1 0 1 के ऊपर. फाइन, दैट इज माई कंप्लीट s. अब क्या कह रहा है, u चेंजेस द साइन व्हेन u विल द चेंजेस द साइन. तो इसका ग्राफ बना लेते हैं. चेंजेस द साइन मीन्स यू हैव टू फाइंड द रूट्स. So when x is equal to 0, y is 1. When y is equal to 0, x is my minus half. Fine. तो आप देखो इसके अंदर s का एक ही रीजन आया. So that is always a positive or negative. You can take any point, let's say 1, 0. What is the value of the u at the point 1, 0? So that will be 0 minus of 3 which is less than 0. तो इसका मतलब इसके पूरी की तरफ u की वैल्यू हमेशा ही less than 0 आएगी. Does it change the sign? No. Look for the v. Y minus 2x. So when y is equal to 0, x will be 0. When x will be half, y will be 1. So your graph will be look like say this one. ऐसे तो आएगा ना, जब x की वैल्यू हाफ आएगी तो y की वैल्यू 1 हो जाएगी. अब इसका मतलब क्या, ये दो रीजन में डिवाइड हो गया 1 and 2. At the point 1, 0. What is the value of the v? X is 1, so it's the sign of minus x. That will be sign of x. X will be 1, which is a positive. But अगर आप यहाँ पे लो, at the point 0, 1, x will be 0. It's a sign of minus half, which is less than 0. So that means in the region 1, it's all are my negative. In the region 2, all are my positive. So v changes the sign. That's correct. v vanishes along the line in the s. तो आप देखो इस रीजन में, ये s के अंदर है ना, इस रीजन में आपके पास हमेशा ही v 0 होगा, बिकॉज ये लाइन कौन सी है आपके पास, y is equal to 2x, and when you substitute y is 2x, sign of v 0 is 0, so v vanishes always. u and v are equal along the line. So when they are equal, the sign terms will be equal. When y माइनस विल बी इक्वल टू, इस माइनस को अंदर एडजस्ट कर देता हूं, 2x माइनस वाई ओवर 2. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई देम. 2 + 1 3, 4 minus 6x minus of 2 is equal to 0. So can you draw the graph again? When y is equal to 0, x will be negative. When x will be 0, y is my 2/3. So your graph will be look like say this one. So clearly say ये इस रीजन में, जो इस स्केयर के अंदर आ रहा है, इस रीजन में क्या होगा आपके पास, दैट विल गिव द u इज इक्वल टू v. सो यस, द सेकेंड ऑप्शन इज दी. सो ए ऑप्शन इज अ रॉन्ग, बी सी एंड डी आर माई करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन. नाउ अगेन यू कैन सी विच इज अ सिमिलर इक्वेशन, प्लस ए डेल u बाय डेल x इज इक्वल टू 0. तो इसका मतलब ये आपके पास u0x कैसा होगा, इट विल बी फाई ऑफ x माइनस ए. इसमें कितना है 20 24 इंटू टी, यही तो आएगा ना. और ये इस इंस्टेड ऑफ द x नोट, फाइन. तो आपका सोल्यूशन बेसिकली क्या बन गया, u नोट. इज इट ओके? नाउ कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. a ऑफ t लिबेक मेजर, a ऑफ 0. सो पहले a ऑफ t को डिफाइन कर लेते हैं. A of t is a collection of all those x such that u of x naught, so x minus 20 24 into t is less than 1. Fine. तो मैं क्या करता हूं, I can take y is equal to x minus 20 24 t. तो x की वैल्यू कितनी आ गई, y plus 20 24 into t such that u naught of y is less than 1. Now I can find the value of the a naught, collection of all those x, a naught, that is a at, when t is equal to 0. So that will be u naught of x is less than 1. तो इससे क्या मीनिंग हुआ, तो ये बेसिकली क्या बन गया, y u naught of y less than 1. So that is basically my a naught plus 20 24 into t. So आपके पास एक्सप्रेशन क्या बन गई, a naught is a naught प्लस 20 24 इंटू टी इज माई ए टी. ये बन गया ना. अब क्वेश्चन देखते हैं पूछ क्या रहा है आपसे. इज अ लिबेक मेजरेबल, देन लेंथ
फाइन, ये क्या आपके पास है, दैट्स अ ट्रांसलेशन, फाइन, शिफ्टिंग तो है ना आपके पास, और लिबेक मेजर इज ऑलवेज इनवेरिएंट अंडर द ट्रांसलेशन, दैट मीन्स द लेंथ ऑफ द AT and the length of the A node are always same. So S1 is the correct statement. If U0 is my Lebesgue measurable, fine, then okay, fine, so is a Lebesgue measurable, that is a L1 norm, fine, and we all knows the L1 norm is also invariant under the translation. तो अगर आपका U नोट आपका Lebesgue इंटीग्रेबल है, because of the translation they are invariant, so S2 are also correct. Both are my correct statement. So first option is the correct answer. Look at the next one. So again they are the constant coefficient. So पहले इसको सही करके लिख लेते हैं, कैपिटल D प्लस D प्राइम, U इसको लेफ्ट साइड पे ले जाओ. मेक श्योर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये लीनियर था ना, इसको राइट साइड. नाउ दिस इज अ नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन. बच्चों मैं इसीलिए कह रहा हूं यू मस्ट वॉच अबाउट माय प्रीवियस थ्योरी लेक्चर्स. आप देखो नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका सॉल्यूशन क्या आएगा, e की पावर 2x phi of y minus x. Since right hand side is 0, so there is no pi. अब सबसे पहले पहली कंडीशन अप्लाई करते हैं. फाइन, सबसे पहली बच्चे इस तरह के क्वेश्चन आजकल खूब आ रहे हैं. यू कैन सी इसे 2024 आई कैन गेट द आंसर इन अ रीजनेबल टाइम. सबसे पहले फिल करो, तो क्या बन गया 1 प्लस साइन ऑफ टी, एक्स की वैल्यू 0 तो 1 हो गया, फाई ऑफ टी. तो यहां पे फिल कर देता हूं, तो u कितना बन गया आपके पास, e की पावर 2x, फाई की वैल्यू फिल कर दो, t को रिप्लेस कर दो y माइनस एक्स के साथ, 1 प्लस साइन ऑफ y माइनस एक्स. इज इट ओके? अब सेकेंड कंडीशन अप्लाई करता हूं, u ऑफ x कोमा 0, सो e की पावर x cos x, विच इज t की वैल्यू 0 फिल करेंगे, दैट इज y की वैल्यू 0 फिल करेंगे, सो फाई ऑफ माइनस एक्स. e की पावर 2x लेफ्ट साइड पे ले जाओ, e की पावर माइनस एक्स cos ऑफ x विच इज फाई ऑफ माइनस एक्स. तो इसका मतलब यहां से मैं सब्स्टिट्यूशन करूंगा, तो ये इसको माइनस में बना लो, तो x माइनस वाई आई कैन सब्स्टिट्यूट, दैट विल बी x माइनस वाई, अगेन दैट विल बी, सो दैट इज cos ऑफ y माइनस एक्स. इज इट ओके? यही बनेगा ना आपके पास, सॉरी इंटू e की पावर 2x भी है, तो e की पावर 2x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज x प्लस वाई. अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू कब लगानी है, अब ध्यान से सुनिए. फाइन, अब पहले वाले पार्ट को देखिए, इसमें t की वैल्यू क्या है, एनी नंबर, और इस वाले पार्ट में x कितना है, 0, so that implies x is my less than of the t. फाइन, तो ये सॉल्यूशन तब एप्लीकेबल होगा जब आपका x की वैल्यू लेस देन t है. और सेकंड केस में, सेकंड केस कब एप्लीकेबल होगा, व्हेन x इज अ पॉजिटिव, t इज माई 0, दैट मीन्स व्हेनेवर x इज ग्रेटर देन t. अब आप यहां देखो, u ऑफ 2 पाई कोमा पाई, तो इसमें कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, x इज माई 2 पाई इज ग्रेटर देन ऑफ द t, सो x इज ग्रेटर देन t, तो ये वाली वैल्यू होगी, तो यहां से वैल्यू निकालो, कितनी आ जाएगी, 2 प्लस 3 cos ऑफ पाई, cos पाई इज माई माइनस 1. नीचे वाली वैल्यू के लिए पाई एंड 2 पाई, तो पाई एंड 2 पाई, x इज लेस देन ऑफ द t, यू कैन सब्स्टिट्यूट इन दिस केस e की पावर 2 पाई, साइन ऑफ पाई इज 0 इंटू 1, तो दोनों को डिवाइड कर दो, कितना आंसर हो गया, e की पावर माइनस पाई इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. बच्चों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, यू कैन काइंडली लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो. अभी तक आपको टाइप 1 जब भी कांस्टेंट कोएफिशिएंट है कितना समझ में आया, यू कैन टेल मी. आप और प्रैक्टिस करना चाहते हो शॉर्टकट ट्रिक से, यू कैन वॉच अबाउट माय दीज थ्योरी लेक्चर्स डीपली. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन. अगेन यू कैन सी इट्स अ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, दैट विल बी d प्लस d प्राइम ऑफ u इज इक्वल टू 0. तो आपका सोल्यूशन क्या बन गया, फाई ऑफ y माइनस एक्स. ठीक है, कोई लेग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन लगाने की जरूरत नहीं है. अगेन पहले केस में t 0 है और x पॉजिटिव है, तो पहला केस आपके पास क्या है, व्हेन x इज ग्रेटर देन t. सेकंड केस व्हेनेवर x इज लेस देन ऑफ द t. बच्चों एक और चीज बतानी रह गई. आप हो सकता है कि आप इस वीडियोस को देख रहे होंगे या मेरे प्रीवियस CSR नेट वीडियोस देख रहे होंगे,
तो आप कहेंगे सर पहले आपने इस क्वेश्चन को किसी और मेथड से सॉल्व कराया होगा, इस क्वेश्चन को मैंने पहले किसी और मेथड से सॉल्व करा होगा प्रीवियस वीडियो में भी। फाइन बच्चों, मैं कोई याद करके नहीं बैठा कि पहले मैंने क्या करवाया था, अभी मैं आपको लाइव पढ़ा रहा हूं, अभी जो मेरे दिमाग में आ रहा है मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। फाइन, हो सकता है कि मैं एक वीक के बाद कोई दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, फाइन, तो एक नया मेथड मेरे दिमाग में आए तो मैं आपको सॉल्व करूं, बट हर मेथड में आपको शॉर्टकट ट्रिक्स दे रहा हूं। आज के मेथड में कांस्टेंट कोफिशिएंट के साथ शॉर्टकट ट्रिक्स दी है, तो मैं उसी तरह से ही सॉल्व करूंगा हर क्वेश्चन को भी। फाइन, चलिए सबसे पहले लगाते हैं पहली कंडीशन भी, तो क्या हो गई, e की पावर x फाइव y इज 0 x विल बी, फाइन, तो इसको मैं रिप्लेस कर देता हूं a, सो इट इज e की पावर माइनस a। करिए, तो यहां से क्या सोल्यूशन बन गया आपके पास, e ऑफ माइनस वाई प्लस एक्स। ये तब सोल्यूशन बनेगा वेन एवर एक्स इज ग्रेटर देन ऑफ द टी। तो लुक एट द ऑप्शंस, ये रहा x की वैल्यू 1 है ना, तो x इज ग्रेटर देन t, क्या आपका सोल्यूशन e माइनस साइन है, नो, क्लियर। और कोई है x ग्रेटर देन t, ये रहा x ग्रेटर देन t, क्या आपका सोल्यूशन साइन की फॉर्म में है, नहीं है, तो डी ऑप्शन भी कैंसिल हो, क्लियर। अब चलते हैं सेकंड ऑप्शन में, x इज लेस देन t, ये होगा ना x की वैल्यू 1 है, दैट इज t इज ग्रेटर देन x, t ग्रेटर देन x, तो ये कंडीशन लगाओ इसके ऊपर, तो कितना बन गया 1 माइनस साइन ऑफ t, x विल बी 0, फाइन, यहाँ पे y है चाहे आपका t के फॉर्म में है तो यहाँ t लिख लो आप, फाइन, तो क्या हो गया इसमें सब्स्टिट्यूशन कर दो, u विल बी 1 माइनस साइन ऑफ t माइनस x, इज इट ओके। अब आप सोल्यूशन देखते हैं, t इज ग्रेटर देन x, क्या आपका एक्सपोनेंशियल में है, नहीं है, क्या आपका e माइनस साइन ऑफ t है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द u 1 कॉमा t, सो दैट विल बी 1 माइनस साइन ऑफ t माइनस 1, तो ये नहीं है, तो लेकिन यही तो कह रहा है ना, डज नॉट एग्जिस्ट अ सोल्यूशन, यस, b इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। अच्छा एक और चीज, ये आपके पास क्या था, यूनिक सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। एक आपको जब भी आपके पास कॉची इक्वेशन हो, ये कॉची इक्वेशन ही तो है ना, इनिशियल कंडीशन गिवन है, कॉची इक्वेशन में आपके पास इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन, नो सोल्यूशन एंड यूनिक सोल्यूशन कब मिलता है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी आपके लिए पीवाई क्वेश्चन सीरीज अपलोड कर चुका हूं, यू मस्ट वॉच इट, माई पीवाई क्वेश्चन सीरीज ऑफ द कॉची इक्वेशन, रिसेंट वीडियो इज this one, shortcut tricks in the 15 second py question of the Cauchy problems, fine, not as a Cauchy equation, it's a Cauchy problem। चलिए look at the next one, the solution of the Cauchy problem, initial condition है, क्या ये constant coefficient है, नहीं है, then you can quickly start with the auxiliary equation, dx over coefficient of the dy over y and dz over z, from the first two case we can say the log x is equal to log of y, I can taken as a constant is a y, so log is my c1, और इन दोनों में ले लो तो that will be z over y is equal to c2, नीचे y और y सेम रख लो आप, फाइन, जैसे आपको मिल गया, always try to prefer the dependent variable is a function of the other variable, फाइन, क्योंकि आपका z डिपेंडेंट वेरिएबल है ना, तो कोशिश करिए z को लेफ्ट साइड पे लिखने के 5 ऑफ 7। अब इसकी पोलर फॉर्म बना लो कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, x की वैल्यू रेडियस इज 1, कोस y इज इक्वल टू साइन, तो यहां पे फिल कर दो z ओवर y, तो z कितना है 1, 1 ओवर y, दैट इज अ कोसिकेंट, फाइन, विच इज इक्वल टू 5 x ओवर y, दैट इज अ कोट, तो इसकी वैल्यू कितनी निकालेंगे, इसको a ले लेते हैं, a इज इक्वल टू कॉट ऑफ थीटा, तो राइट ट्रायंगल बना लो आप, फाइन, a 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1 प्लस ए स्क्वायर, तो कोसिकेंट की वैल्यू कितनी होगी 1 प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5 ऑफ ए, तो यहाँ पे फिल कर दो, कितना हो गया रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर, टेक द एलसीएम, you will get z is equal to x square plus y square is the right answer of the problem. Look at the next one. Again the coefficients are not constant, so you can write the coefficient ux is a u, second is my y, fine, and the right hand side is ये u में है आपका is a u. Always remember student, जब भी constant coefficient नहीं होंगे
तो आपको हमेशा ऑक्सिलरी इक्वेशन लगानी होगी। तो क्या शॉर्टकट ट्रिक्स बताई थी मैंने आपको इस लेग्रेंज इक्वेशंस लेक्चर में? सबसे पहले जैसे यू स्केयर माइनस एक्स स्केयर है, तो क्या आप चेक करो डी, ये चीज आपकी जीरो आ रही है नीचे, तो चेक कर लेते हैं u इंटू डी यू, इसको u के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको x के साथ, तो ये कितना बन जाएगा माइनस एक्स यू, और u इंटू डी यू करेंगे तो ये जीरो बन गया ना नीचे। तो यस, इसका मतलब ये पहला सोल्यूशन यू स्केयर माइनस एक्स स्केयर करेक्ट हो गया आपका। फाइन, ये भी यू स्केयर माइनस यू स्केयर प्लस एक्स स्केयर बनेगा, दैट मीन्स u इंटू डी यू प्लस एक्स इंटू डी एक्स, क्या ये नीचे जीरो बनेगा? नहीं बनेगा, तो ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। x प्लस वाई मतलब dx प्लस डी वाई, क्या ये नीचे जीरो बनेगा? नो, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। y एंड x प्लस यू, अब y एंड x प्लस यू के लिए देख लेते हैं, पहले x प्लस यू कर लो, dx प्लस डी यू कितना बन गया? फाइन, दैट विल बी, तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, log हो जाएगा x प्लस यू ओवर y इज माई, तो आप देखो दोनों से आप क्या लिख सकते हो ना ये, फाइन, C1 is equal to 5 times of the C2, or which is a similar meaning of C1 comma C2. So first option correct. Second option से इस वाले से लिखोगे आप, तो you will get the second option. A and B are the right answer of the problem. Okay, फिर से देखो आप, फिर से ये वही इक्वेशन बन गई, du by dt माइनस ऑफ u del u by del x इज इक्वल टू जीरो। आप यहां पे राइट हैंड साइड जीरो है आपके पास, तो इसका सोल्यूशन किस फॉर्म क्या आएगा आपके पास? x माइनस ए टी, तो माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो, यही बनेगा ना सोल्यूशन। बट लेकिन सोल्यूशन आपको क्या दे रखा है इन्होंने? x, इसका मतलब x प्लस, इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर दो यहाँ पे, u ऑफ x कोमा जीरो दैट इज माई x, फाई ऑफ x, तो यहाँ पे फिल कर दो वैल्यू, तो ये इक्वेशन क्या बन गई आपकी? x प्लस यू टी, तो u की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? x ओवर 1 माइनस टी। ये वाली शॉर्टकट ट्रिक्स आप हमेशा अपने दिमाग में रखिए। द सोल्यूशन एग्जिस्ट फॉर ऑल टी ग्रेटर देन जीरो, रॉन्ग, 1 पे डिफाइन नहीं है। सोल्यूशन एग्जिस्ट फॉर टी लेस देन हाफ, फाइन, एंड ब्रेक डाउन का मतलब इंफिनिटी, हाफ पे तो इंफिनिटी नहीं जा रहा, break down at 1 and existence, break down at 2 is a wrong, third is the right answer of the problem. Okay, look at that, July 2025 is a Cauchy equations, fine, 1 की इनिशियल वैल्यू दे रखी है आपको, और which of the following statement is true, तो आप देखो ये 1 दे रखा ना आपको, तो 1 के ऊपर 1 फिल करोगे, 1 + 1 2 is the right answer of the problem। 5 सेकंड लगे ना सॉल्व करने में। अदरवाइज मैं आपको दूसरा वे भी दिखा देता हूं, ऑक्सिलरी इक्वेशन लगाओ, फाइन, डी वाई ओवर वाई एंड इट इज डी यू ओवर एक्स माइनस वाई, तो क्या करें इसको, डी एक्स प्लस डी यू कर दे, तो क्या बन जाएगा, y से y कैंसल, इसे u प्लस एक्स विच इज इक्वल टू डी वाई ओवर वाई, इंटीग्रेट कर दो एंड यू विल सी u प्लस एक्स ओवर वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट C1। सेकेंड सोल्यूशन निकालने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि इसी के अंदर u x y, इसमें 3 ही तो वेरिएबल है ना, u x एंड y सभी इसी में आ गए, तो आप इसी पे इनिशियल कंडीशन अप्लाई करो, तो क्या बन गया, y इज 1, u इज माई 1 प्लस एक्स, फाइन, x विल बी x, तो 1 प्लस 2x इज इक्वल टू C1, तो यहाँ पे फिल कर दो u प्लस एक्स ओवर वाई विच इज इक्वल टू 1 प्लस 2x। Now you can see what is the value of the 1 comma 1, x is 1, y is 1, so that will be, ये कितना हो गया, u plus 1 is equal to 3, 3 minus 1 2 satisfied, 2 comma 2 u plus 2 which is divided by 2, 2 to the 4, 4 plus 1 is 5, 5 to the 10, 10 minus 2 8, cancel out, 3 comma 3 u plus 3 over 3 which is 6 plus 1 7, 21 minus of the 3 is not 3 by 2, again it is not 4 2 by 3, right answer is A is the correct answer। लेकिन आपको तो एग्जामिनेशन में 1 सेकंड में ही आंसर मिल जाएगा, बिकॉज 1 पे इनिशियल कंडीशन गिवन है और 1 पे बाउंड्री आपके पास सोल्यूशन पूछ लिया। चलिए, अगेन द कांस्टेंट कोएफिशिएंट नहीं है आपके पास, ऑक्सिलरी इक्वेशन लगाइए, जब भी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री हो यू मस्ट अप्लाई द ऑक्सिलरी
equation, fine, which is equal to du over u. So clearly say from the first and second I can get x over y is equal to constant. From the second and third, because y नीचे लिखा हुआ है तो I can take the second and the third. Fine, I can take an u over y is 5 times x over y. Apply the initial condition. Y is equal to 1, x will be x, u is 1 plus x square, so that will be 5 of x. तो ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो तो कितना बन गया 1 plus x square over y square, which implies take the LCM and u will be x square plus y square. ठीक है जी. अब आप ऑप्शन चलते हैं. u of 1, 0 is 0. Wrong. u and u are same provided x1 square plus y1 square and x2 square and y2 square are same. u of 1, y for all y, that's wrong. If you consider y is equal to 3, then what is the value of the u? 1, 3. That will be 1 plus 9, which is not equal to root 2. u and same whenever x1 plus y1 and x2 plus they are same. Wrong. ये स्केयर होना चाहिए ना. आप कोई भी एक नंबर ले लो, x1 की वैल्यू 1 लेते हैं, xy is 1, ये 2 बन गया. इधर ले लेते हैं 0 and 2, ये सेम हो गया ना आपके पास. तो फिल करते हैं, कितना बन गया 1, 1 और ये बन गया आपका 2, 0. सेटिस्फाइड हो रहा है ये. 1 plus 1 is a root 2. फाइन. और ये कितना बनेगा 2. दे आर नॉट इक्वल. So the right answer is only B is the correct answer. Now you can see some March 2025. Constant coefficient है लेकिन यहाँ पे constant नहीं है, तो you have to apply the auxiliary equation. dy over 1 du over u square. तो आपके पास पहली इक्वेशन बन गई x minus y is equal to constant और सेकंड बन गया y minus minus plus is equal to constant. Which of the following has a solution? इसमें फिल कर लेते हैं. एक 1 फिल करेंगे तो that will be x, b will be 0, that will be x minus y is equal to 0, that is implies 2x plus y is equal to 0 and x plus 2y is equal to 0. These equations are called as characteristics curves. Find तो किसके साथ मैच हो रहा है? x minus y is equal to 0 is satisfied. So B is the only right answer of the problem. Clear? चलिए look at that next one. Which of the following is the unique solution and so on. तो मैं आपको ये यूनिक सोल्यूशन इस वाले लेक्चर से करवा देता हूँ. यूनिकनेस के लिए क्या बताया था पी वाई क्यू में, तो आपके पास क्या है, इसको कंपेयर करते हैं. यही थी ना आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन. फाइन. तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए आपको क्या बताया था, डिटर्मिनेंट कर्व के आपके पास x विल बी 0, y विल बी y और u आपके पास क्या है e ऑफ y. तो p की वैल्यू फिल करो. p इज माई x इज माई 0, क्यों कितना आपका 1 और इन दोनों का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 0, y का डेरिवेटिव 1. क्लियरली से दैट नंबर इज 0, देयरफॉर इट इज नॉट यूनिक सॉल्यूशन. तो यूनिक नहीं है तो सी, बी और सी ऑप्शन तो कट गया आपके पास. अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं. dx ओवर x, dy ओवर 1 which is du over 1. From the first and second, log of x is equal to y plus log of c. So that implies x e की power minus y is equal to c1. Fine. और second one is u minus y is equal to c2. अब किस पॉइंट पे पूछा आपको, infinite many solution defined at the origin and at the origin. So that means what will happen at the origin? At the point 0, 0 c1 will be 0. तो जब आपकी characteristics curve 0 हो जाती है that means there is a no solution. But यहाँ पे क्या कह रहा है आपको, infinitely many solution. So there is no neighborhood around the origin which has a solution is the right answer of the problem. अगर बच्चों आपको कुछ चीजें नहीं समझ में आ रही, मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूं आपसे, आप मेरी थ्योरी लेक्चर पहले देख लीजिए so that you can get your answer in a very reasonable time. चलिए ये क्वेश्चन स्टूडेंट काफी कंफ्यूज होते हैं. तो ये क्वेश्चन देखो वही फॉर्म का है. तो आपको क्या बताया था मैंने शॉर्टकट ट्रिक्स, इसमें के क्या होना चाहिए आपके पास,
तो लगाओ ऑप्शन। कितने सेकंड लगे आपको सॉल्व करने में? इस बात पे तो लाइक बनता है बच्चों वीडियो पे। यही बताया था शॉर्टकट ट्रिक्स, ये वही फॉर्म है ना, डेल यू बाई डेल टी प्लस सम कांस्टेंट और यू, डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसका सोल्यूशन किस फॉर्म में बताया था मैंने आपको, और वही तो बताया था के एक्स की फॉर्म में ही होगा ना इसका सोल्यूशन, एक्स कोमा जीरो हमेशा, और के क्या होगा आपका ऑलवेज पॉजिटिव, और टी भी आपका देखो पॉजिटिव ही है। फाइन, तो 1, 3, 4 आर दी राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। चलिए, द सोल्यूशन ऑफ द पीडी सब्जेक्टेड टू दिस केस भी। तो सॉल्व क्यों करना है, जी एक्स की वैल्यू ले लेते हैं। अज्यूम दैट जी ऑफ एक्स विल बी 0, तो आपकी इनिशियल कंडीशन, सॉल्यूशन बाद में निकालेंगे, ऑप्शन तो डिस्कार्ड करें पहले। फाइन बच्चों, 15 सेकंड में आंसर लेना है, तो आपको जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं वैसे ही पढ़िए आप। तो क्या पहला ऑप्शन क्या बन गया, 1 माइनस ई की पावर यू ऑफ एक्स को 0 फिल करना है, ई की पावर 0 इज 1 इंटू 1 माइनस जी ऑफ 0 इज 0, तो ये 0 सेटिस्फाइड हो गया। ये अगला नहीं होगा ना, प्लस आ गया बीच में, 1 माइनस 0 विच इज नॉन जीरो, तो सेकंड ऑप्शन तो कट गया आपका। सिमिलर लास्ट वाला ऑप्शन भी देख लेते हैं, ई की पावर 0 इज 1, 1 माइनस 0 विच इज नॉट इक्वल टू 0, तो थर्ड ऑप्शन, सेकंड फोर्थ ऑप्शन भी कट गया, और ये हो जाएगा, ये 0 हो गया और ये 1 माइनस हो गया। फाइन, तो अब आपका ऑप्शन रह गया ए और सी। अब आप ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लेते हैं, डी एक्स ओवर, इसको पहले सही कर ले, माइनस एक्स इंटू यू एक्स प्लस यू ऑफ टी, राइट हैंड साइड पे ले जाओ u माइनस 1, सो माइनस ऑफ एक्स डी टी ओवर 1 एंड डी यू ओवर u माइनस 1, इसको कर दो माइनस, उधर ले जा रहा हूं, सो लॉग ऑफ x विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी प्लस लॉग ऑफ c, तो आपका x क्या बन जाएगा, e की पावर माइनस ऑफ टी, तो इधर आके e ऑफ प्लस टी विच इज माई कॉन्स्टेंट। फाइन, और इधर से इसका लॉग हो गया, log of u minus 1 which is t plus log of c, so that give you u minus 1 e raised to power minus of t is equal to c2. Then you can write, apply the initial condition. Fine, पहले फाइल लगा लेते हैं, x into e की पावर t, अप्लाई द इनिशियल कंडीशन, जीरो ले लिया, जी तो गिवन नहीं है ना, आप बच्चों यहाँ पे 1 भी ले सकते हो, आप इस पे साइन x ले सकते हो, चॉइस आपकी है, जिससे आपको कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो u की वैल्यू 0, e की x की वैल्यू 0, फाइन, t की वैल्यू 0, सो फाइव ऑफ x इज माइनस 1, तो जो भी इसका आंसर है दैट विल गिव यू द माइनस 1, तो आंसर कितना हो गया, u माइनस 1 विच इज माइनस ऑफ e की पावर प्लस t, सो u विल बी 1 माइनस e की पावर t। तो देखो जैसे g की वैल्यू का आपने 0 करा, फाइन, तो 1 माइनस ई की पावर प्लस टी, लेकिन यहां दोनों आपके माइनस ऑफ टी हैं। फाइन, तो इसका मतलब नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। तो यहां पे कोई टाइपिंग एरर है आपके पास स्टेटमेंट के अंदर। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन, अगेन कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन की फॉर्म में लिख लेते हैं, एक्स वाई, फाइन, एंड डी ऑफ यू इज माइनस एक्स वाई। ओके, क्वेश्चन बच्चे किसी भी ईयर का हो, मैं सेम अप्रोच से सॉल्व करूंगा। x इसके साथ y है, तो मैं इसको y इंटू डी एक्स, तो ये एक्स वाई हो गया, और इसमें प्लस कर दूं तो ये 0 बन जाएगा आपका नीचे। फाइन, इसी तरह से मैं इधर कर लेता हूं, इसको x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, x इंटू डी वाई, और इसको u से कर देता हूं मल्टीप्लाई, और दोनों को क्या कर दूं, इसको ऐड ही करना पड़ेगा ना, तभी 0 बनेगा ना। फाइन, अब इन दोनों को भी ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, डी ऑफ एक्स वाई हो गया ना। फाइन, और इधर u प्लस 1 ऑफ डी यू इज इक्वल टू 0, इंटीग्रेशन कर दो दोनों तरफ, यू विल गेट एक्स वाई प्लस u प्लस 1 होल स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसके अंदर देखो सारे आगे ना u एक्स वाई, तो अप्लाई कर दो डायरेक्टली इनिशियल कंडीशन। फाइन, तो क्या होगा, u की वैल्यू 5, एक्स वाई इज माई 1, तो कितना हो गया, 5 प्लस 1 6, 36 डिवाइडेड बाय, फाइन, तो C1 विल बी माई 19, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 19। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, सो u प्लस 1 होल स्क्वायर दैट विल बी 19 माइनस एक्स वाई, द लेफ्ट हैंड साइड इज अ स्क्वायर वैल्यू, तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए,
पॉजिटिव कब आएगी? व्हेन 19 माइनस एक्स वाई मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सो दैट्स द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन इज द रॉन्ग. क्या ये सिमेट्रिक भी है? यू कैन सी दैट एक्स एंड वाई आर सिमेट्रिक एंड दैट्स ट्रू. सो यस, इट इज माई करेक्ट ऑप्शन. सो आपका सोल्यूशन बन गया. दिस इज माई कंप्लीट सोल्यूशन. अब आप ऑप्शन ले लो जो जो आपको ऑप्शन पूछा है. थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है? u1,11. ठीक है, तो यहां फिल करते हैं u+1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. सो 19 माइनस 11, 19 माइनस 11 इज 8, 8 टू या 16, 16 का स्क्वायर रूट 4, 4 माइनस 1 इज 3, u विल बी 3. सिमिलरली 13 माइनस 1 करें तो u+1 होल स्क्वायर, it will be 13 minus 1, 19, minus minus plus, so that will be my 31, 31 into, no, 32, sorry, 32 into 2, 64, 64 का square root 8, 8 minus 1 is my 7. Yes, is a correct option. अब थर्ड ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं. 1 minus 1, so u+1 whole square, 19 plus 1, 19 plus 1 is 20, 40, 40 square root minus 1 which is not equal to 5. The right answers are A and C are the correct options. Chaliye, look at that. Again, the coefficients are not constants, so you can write as the auxiliary equations x plus y into z dy over x minus y into z and dz over एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो आपको कांस्टेंट निकालना है. तो फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं. ये सोल्यूशन कब बनेगा? अगर आप इसकी इंटीग्रेशन कर दोगे तो बन जाएगा ना सोल्यूशन. तो ये चेक कर लो इसका कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा. मतलब पहली वाली लाइन को x से मल्टीप्लाई करो तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई जेड. इस वाले को y से मल्टीप्लाई करो एक्स वाई जेड माइनस वाई स्क्वायर जेड, और थर्ड वाली को z के साथ. तो देखो 0 नहीं बनाना, कैंसिल नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सोल्यूशन नहीं होगा. अब माइनस वाला ले लेते हैं, एक्स डी एक्स माइनस वाई डी वाई माइनस जेड इंटू डी जेड. क्या ये 0 बनेगा? तो माइनस के लिए ये माइनस था, ये प्लस, ये माइनस और ये माइनस, एक्स वाई जेड कैंसल, वाई स्क्वायर, ये 0 बन गया आपका. तो एक तो ये सोल्यूशन पक्का है. x प्लस वाई प्लस जेड, मतलब इन तीनों को ऐड करके देखो 0 बनेगा? नहीं बनेगा, दैट इज कैंसल. एक्स क्यूब कब 0 बनेगा? व्हेन यू टेक एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर. ये चेक कर लो, इस वाली लाइन को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज एक्स क्यूब जेड, लेकिन यहाँ पे एक्स क्यूब जेड कोई और नहीं बनेगा, दैट विल नॉट बी 0. सो फोर्थ ऑप्शन इज कैंसल. ओनली ऑप्शन लेफ्ट बिहाइंड इज डी इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. Okay, look at that. Cauchy, again coefficients are not constant, so you can write as a dx over 1 dy over x square and du is my 0. So from the first and second I can take x square into dx is equal to dy. I can integrate them. x cube minus 3y is equal to constant, और एक u तो 0 है ही आपके पास. फाइन, तो आपका सोल्यूशन क्या बन गया? 5 ऑफ x cube minus 3y. Apply the initial condition. U of x comma 0 is e की power x, which is 5 of x cube. So I can taken x cube is my a, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? a की पावर 1/3. तो यहाँ फिल कर दो. 5 की वैल्यू कैसे फिल करनी है? इसकी पावर 1/3. तो ये आपका आंसर हो गया. फाइन. और अदरवाइज जैसे आप यहां पे भी पहुंचे, आप यहीं से ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हो. जो भी ऑप्शन आएगा उसमें एक्स क्यूब माइनस 3y होना चाहिए. ओनली थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. चलिए, लुक एट दैट अनदर वन. इसको पहले सही करके लिख लेते हैं. डेल यू बाई डेल एक्स, इसको राइट साइड पे ले जा रहा हूं. u माइनस 1 इज द पॉजिटिव. डेल यू अपॉन डेल वाई. अगेन द कोफिशिएंट्स आर नॉट कांस्टेंट, सो आई कैन स्टार्ट विद द ऑक्सिलरी इक्वेशन. dy over minus 1 du over u minus 1. So from the first and second, it's a log of x is minus y plus log of c. So I can find the value of the c.
is e raised to power y is equal to c1. Fine. Similarly, from the second and the third, I can take a log of u minus 1, which is minus of t plus log of c. So that will give you u minus 1 e की power minus of t, fine, which is equal to c2. फाइन, सॉरी ये सब कुछ y है तो ये भी y ही आएगा. फाइन, तो आपका सोल्यूशन क्या बन गया, u माइनस 1 e की पावर y विच इज इक्वल टू 5 टाइम्स x e की पावर y. नाउ अप्लाई द इनिशियल कंडीशन. u की वैल्यू क्या है आपकी साइन x, y की वैल्यू 0 है, e की पावर 0 इज 1, 5 ऑफ x. तो ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो. कितना बन गया आपके पास, u माइनस 1 e की पावर y विच इज x की जगह पे x इंटू e की पावर y माइनस 1. अब किस पॉइंट पे पूछा इन्होंने सोल्यूशन आपसे, दे आर टॉकिंग अबाउट द 0,1. तो सब्स्टिट्यूशन कर दो. y की वैल्यू 0, e की पावर 0 इज 1, सॉरी y इज माई 1, x इज 0, सो साइन 0 इज 0 माइनस 1. कितना आंसर हो गया ये, माइनस 1 ओवर e, 1 माइनस a इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन. अगेन इसको सही करके लिख लेते हैं. पहले x को e की पावर माइनस ऑफ टी यू एक्स माइनस यू ऑफ टी इज इक्वल टू यू. तो कॉन्स्टेंट कॉफिशिएंट नहीं है, ऑक्सिलरी इक्वेशन लगाओ. फाइन, विच इज डी ऑफ टी माइनस 1 डी ऑफ यू एंड यू. फ्रॉम द फर्स्ट एंड सेकेंड इसको मैं उस तरफ ले जा रहा हूं. फाइन, इट्स नेगेटिव e की पावर माइनस टी. इंटीग्रेट कर दो दोनों तरफ, सो दैट विल बी माइनस माइनस प्लस प्लस कांस्टेंट, सो दैट गिव यू x माइनस e इज माई फर्स्ट कांस्टेंट. फाइन, सेकेंड कांस्टेंट इन दोनों से ले लेते हैं. तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ u विच इज माइनस ऑफ t प्लस लॉग ऑफ c. सो आई कैन टेकन u e की पावर t इज माई अनदर कांस्टेंट. तो दोनों की फॉर्म में लिख लो, विच इज 5 टाइम्स x माइनस e की पावर माइनस t. नाउ सब्स्टिट्यूट द इनिशियल कंडीशन. u is my x, t is my 0, e raised power 0 is 1, x e raised power 0 is 1, 5 minus 1. I can take an a where a is my x minus 1. फाइन, तो ये कितना हो जाएगा, a प्लस 1. तो यहाँ पे फिल कर दो वैल्यू. लेफ्ट हैंड साइड इज u और राइट हैंड साइड क्या होगी, a प्लस 1 x माइनस e की पावर माइनस t प्लस 1. तो ये इधर जाके e की पावर माइनस ऑफ t. सेकेंड इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, लुक एट दिस. फिर से वही आ गई इक्वेशन आपकी. फाइन, तो आपका ये u नोट कैसा होना चाहिए आपके पास, u नोट मस्ट बी द फॉर्म ऑफ द kx वेयर k मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड ये सॉल्यूशन कैसा बनेगा आपके पास, x माइनस यू टी. सो फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ द यू नोट आपके पास क्या है, kx की फॉर्म का है. तो सिर्फ देखो सेकंड ऑप्शन ही आपके पास है जिसमें k की वैल्यू 1 है. 1 प्लस kx भी नहीं चाहिए, ओनली फॉर द kx. फाइन, सो द राइट आंसर इज b इज द राइट आंसर. देखिए 2012 से लेके 2025 तक ये क्वेश्चन आ रहा है और मैंने आपको शॉर्टकट ट्रिक्स प्रोवाइड कर दी. चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन, द सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम. सो फिर से इसके ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो. x माइनस वाई डी वाई ओवर y माइनस एक्स माइनस ऑफ u एंड डी यू ओवर u. चलिए सबसे पहले अब पहले देखो, अगर मैं इन तीनों को ऐड ही कर दूं तो 0 बन गया नीचे, y से y कट जाएगा, x से x कट जाएगा, u से u. इसका क्या मतलब हो गया, दैट मीन्स x प्लस वाई प्लस यू इज इक्वल टू 1 कॉन्स्टेंट. ये तो सोल्यूशन में आना ही आना है. अब चेक कर लो जिसमें x प्लस वाई प्लस यू नहीं है, पहले वाले में नहीं है, सेकंड में है, थर्ड में है, फोर्थ में नहीं है. क्लियर. चलिए अब बाकी सोल्यूशन कैसा है, y माइनस एक्स माइनस ऑफ यू, ये भी y माइनस एक्स माइनस यू, अगर माइनस कॉमन ले लेंगे हम. द डिफरेंस इज यू स्क्वायर किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मैं y और u का ले लेता हूं पेयर. इसमें x प्लस यू की वैल्यू फिल कर दो यहां से निकाल के. कितना हो गया, 2y माइनस c1 विच इज
फाइन, इंटीग्रेट कर दो तो कितना बन गया ये log ऑफ 2y माइनस c1 डिवाइडेड बाई 2 विच इज log ऑफ u प्लस log ऑफ कांस्टेंट, इसको डिवाइडेड बाई 2 कर देते हैं। तो आपको हर जगह पे यू स्केयर चाहिए ना, इस 2 को उधर ले जाता हूं, सो इक्वेशन बिकम्स 2y माइनस c विच इज u स्केयर इंटू c1। c1 की वैल्यू फिल कर दो तो यू विल गेट x प्लस वाई प्लस u विच इज इक्वल टू u स्केयर ऑफ c1। तो यहाँ पे वैल्यू नो, हाँ तो अब आपकी इनिशियल कंडीशन तो रहेगी ना फिल करनी, तो आपके पास सॉरी इसमें तो नया सेकंड c2 आएगा ना कांस्टेंट, तो यहाँ पे फिल कर देते हैं वैल्यू। ये क्या हो गया x प्लस वाई प्लस यू विच इज इक्वल टू यू स्क्र c2। इज इट ओके? फाइन। और अदरवाइज ये इनिशियल कंडीशन अगर आप यहाँ पे फिल करोगे तो आपको c1 निकल जाएगा। तो यहाँ पे फिल कर दो कंडीशन, y इज 0 तो u इज x, 1 प्लस x इट इज c2, तो c2 इज माई 1 प्लस x। तो जैसे आप ब्रैकेट खोल के सब्सटीट्यूशन करोगे यू विल सी द थर्ड ऑप्शन कैंसल, b इज द राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम। दैट यू कैन डू इट बाय ओन, दैट्स अ वेरी सिंपल टास्क फॉर ऑल ऑफ यू। ओके, कंसिडर द लिग्रेंज इक्वेशंस, कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है तो एक्स स्क्वायर ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लो क्विकली से, वाई स्क्वायर डी जेड ओवर एक्स प्लस वाई इंटू जेड। तो देखो 1 ओवर एक्स 1 ओवर वाई पहले 2 से बन जाएगा ना आपका, माइनस 1 ओवर एक्स प्लस 1 ओवर वाई इज माई कॉन्स्टेंट, तो ये तो सोल्यूशन बन जाएगा। एक्स माइनस वाई ओवर जी, इन दोनों को अगर मैं डी एक्स माइनस डी वाई करता हूं तो एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, तो एक कैंसिल हो जाएगा। फाइन, अब आप इंटीग्रेट करोगे इसे, सो यू विल गेट एक्स माइनस वाई ओवर जी इज इक्वल टू सेकेंड कॉन्स्टेंट। तो एक्स माइनस वाई ओवर जी भी है और ये भी है। अच्छा, अब एक्स वाई ओवर जी बन रहा है कहीं से, देखो इस C1 को मैं एलसीएम ले सकता हूं इसका, सो y माइनस एक्स ओवर एक्स वाई विच इज इक्वल टू C1। फाइन, अगर मैं इसको माइनस से डिवाइड कर दूं, माइनस से मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फाइन, अब मैं इसको z से डिवाइड और z से मल्टीप्लाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फाइन, अब आप देखो इसकी वैल्यू क्या बन गई आपकी C2, C2 को मैं उस तरफ ले जा रहा हूं तो दैट इज माई अनदर कॉन्स्टेंट, C1 डिवाइडेड बाई C2 इज माई C3। फाइन, तब आपके 3 सॉल्यूशंस आ गए, इसके तीनों से लीनियर कॉम्बिनेशन से जो भी लिखा जाएगा तो दैट इज द फर्स्ट वन, इसको रेसिप्रोकल ले लो, और सेकंड एंड द थर्ड से यस इज अ सॉल्यूशन, x माइनस वाई ओवर जी एंड 1 ओवर x माइनस 1 ओवर वाई। यहां पे xy रह गया, इसको मैं लिख सकता हूं ना z ओवर xy विच इज अ फंक्शन ऑफ, लेकिन यहां पे xy मिसिंग है, सो द राइट आंसर इज 1, 2 एंड 4 आर द करेक्ट आंसर्स। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन। सोल्यूशन है आपके पास डी एक्स ओवर एक्स डी टी ओवर टी विच इज डी यू ओवर यू प्लस 1। अब आप क्वेश्चन देखते हैं, सिंगुलर सोल्यूशन स्पेस नो कैरेक्टरिस्टिक्स कंडीशन फॉर द यूनिक सोल्यूशन। पहले यूनिक निकाल दें, यूनिक के लिए क्या करना आपको, डिटर्मिनेंट तो देखना ना। फाइन, तो p की वैल्यू कितनी है आपकी x, कंडीशन क्या आपकी x तो x है, t की वैल्यू आपकी x स्क्वायर है और u की वैल्यू आपकी x स्क्वायर है, ये आपकी इनिशियल कंडीशन है। बच्चों मैं यूनिकनेस वाला कंसेप्ट इस कॉची आइलर वाली py क्वेश्चन सीरीज से निकाल रहा हूं। फाइन, आप दोबारा सुन सकते हो अगर आपको किसी को कोई भी डाउट है। x की वैल्यू x है, t की वैल्यू आपके पास क्या है x स्क्वायर, और डेरिवेटिव ऑफ द x डेरिवेटिव ऑफ द y। सो क्लियरली से डिटर्मिनेंट कितना आ गया 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, सो एट द 0 0 ये वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन यूनिकनेस के लिए आपको क्या चाहिए नॉन जीरो, सो दैट मीन्स नॉट यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ भी वही कह रहा ना, डज नॉट होल्ड द यूनिक सॉल्यूशन, सो डी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया आपका। इज इट ओके? अब हम चलते हैं अगले वाले पार्ट के लिए। अगला पार्ट कर लेते हैं, कोई भी नो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए इसको सॉल्व कर लो, तो क्या आ जाएगा log x इज इक्वल टू log t एंड log c। फाइन, तो आपका x हो गया आपके पास c इंटू टी, एंड इट क्लियरली से दिस इज द कर्व पासिंग थ्रू द 0, 0, तो यस दिस द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व
लेकिन ये कह रहा है नो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन, तो सी ऑप्शन आपका कैंसिल हो। विच ऑफ द गिवन स्पेस इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व, तो कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व के लिए क्या करना होगा आपको भी, टेंजेंट निकालो पहले। फाइन, टेंजेंट मतलब इसका स्लोप, इस जो आपकी कर्व है इसका स्लोप निकालो, कितना आएगा 1 2x एंड 2x एट द पॉइंट 0,0 दैट विल बी 1 0 एंड 0, और इसके कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी आएगी, कोफिशिएंट की वैल्यू क्या है x t एंड u प्लस 1, तो फिल कर दो ये पॉइंट, इस पॉइंट पे x की वैल्यू x है, ये x स्क्वायर है और ये x स्क्वायर प्लस 1 एंड एट द पॉइंट 0,0, तो ये कितना हो गया 0 0 एंड 1 एंड क्लियरली से both are not proportional to each other, they are not proportional, that implies it is not characteristics curve. Fine, तो ये भी नोट ही कह रहा है ना आपको, that's a correct statement. The solution is singular, तो solution singular कब होता है, निकालने की कोई जरूरत नहीं है। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के कोफिशिएंट क्या आपके पास x t u प्लस 1 एट द पॉइंट 0,0, क्या कोई भी कोफिशिएंट ब्लो अप हो रहा है, ब्लो अप का मतलब क्या होता है इंफिनिटी पे, एट द पॉइंट 0,0 पे कोई ब्लो अप हो रहा है, नो ब्लो अप, तो अगर ब्लो अप नहीं हो रहा व्हाट डज इट मीन्स, दैट मीन्स देयर इज नो सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। फाइन, देयर इज नो सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट, लेकिन ये कह रहा है सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, सो द राइट आंसर इज बी एंड डी आर द राइट आंसर। क्लियर? अगर आपको मेरी किसी प्रीवियस वीडियो में कोई क्वेश्चन का आपको लगता है कि सर उसमें तो आपने ए ऑप्शन बताया था, इसमें आपने बी बता दिया, तो टुडे जो रिसेंट वाली वीडियो है दैट इज ऑलवेज द करेक्ट ऑप्शन। फाइन, ओके, द जर्नल सॉल्यूशन विच इज सरफेस परपेंडिकुलर टू दैट, क्या होती है परपेंडिकुलर, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव एफ एक्स डी वाई माइनस पार्शियल डेरिवेटिव एफ वाई, और ये जी में है तो डी जेड माइनस पार्शियल डेरिवेटिव एफ जेड, वेयर एफ को आप लिख लो इसकी फॉर्म में जेड स्क्वायर माइनस के एक्स वाई, तो निकाल दो वैल्यू कितनी आ गई, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस माइनस प्लस के वाई डी वाई एफ वाई पार्शियल डेरिवेटिव के एक्स, और z के साथ करेंगे दैट्स अ माइनस ऑफ 2z, k की वैल्यू फिल कर दो यहां से, के वाई कितना आ गया जेड स्क्वायर ओवर x, तो x में ऊपर ले गया डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर, यहाँ पे y ऊपर ले गया मैं डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर विच इज माई डी जेड ओवर माइनस 2z। अब आप देखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कब बनेगा सोल्यूशन, जब आपका x dx माइनस वाई डी वाई जीरो बने, तो ये जीरो बनेगा, माइनस करके जीरो बन जाएगा, तो यस यस यस, लेकिन प्लस करके जीरो नहीं बनेगा, सो डी ऑप्शन कट गया आपका। फाइन, और सेकंड क्या आपका एक्स और जेड का, तो एक्स और जेड में बना लेते हैं, इन दोनों को सॉल्व कर लो। फाइन, तो क्या बन गया एक्स इंटू डी एक्स विच इज माइनस जेड ओवर 2 इंटू डी जेड, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर ओवर 2 विच इज जेड स्क्वायर ओवर 4 प्लस कॉन्स्टेंट, तो कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी twice x square plus z square, so C is the right answer of the problem. The solution of the initial of the Lagrange equation, so constant coefficient नहीं है, you can write as find d of z is 0, so from the first and second you will get x over y is constant and from the second is z is equal to, so z will be some function of x over y। अब मॉडुलस लगा लो, लॉग में हम मॉडुलस लगा लेते हैं ना, तो एक ही बात है वो आपके पास, क्योंकि डोमेन आपको गिवन नहीं है, x माइनस 1 नहीं है, x प्लस 1 नहीं है, ए इज द राइट आंसर। चलिए लुक एट द नेक्स्ट वन, अगेन ऑक्सिलरी इक्वेशन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं है आपके पास, डी वाई ओवर एक्स विच इज डी यू ओवर 0, तो पहले से क्या बन गई आपकी x dx माइनस डी वाई 0, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर बाई 2, फाइन, और इधर से u इज इक्वल टू c2, तो आपका सोल्यूशन क्या बन गया u इज इक्वल टू 5 ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2y। अप्लाई द इनिशियल कंडीशन,
u की वैल्यू आपके पास e की पावर x है, y की वैल्यू 0 है, सो दैट विल बी x स्क्वायर। इसको a का नाम ले लेते हैं, सो x विल बी रूट ऑफ a। तो यहाँ फिल कर दो, कितना आ गया, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई की पावर, फाइन, प्लस माइनस, फाइन। अब फिल कर दो u ऑफ 2,1, तो 2,1 कितना आएगा, 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 इज ए 2 बट इसे ई स्क्वायर, 1,हाफ, 1,हाफ ई की पावर 0 दैट्स ए 1, सेटिस्फाइड, माइनस 2,1 माइनस 2 दैट्स ए 4 माइनस 2 दैट इज ए प्लस माइनस रूट 2, तो रूट 2 लिखा हुआ है माइनस का करेक्ट, 2,1 4 plus minus 2 that's a root 2 satisfied. B, C, D are the right answer of the problem. Okay, look at that. Again देखो, ये फिर से वैसे ही सोल्यूशन है ना आपके पास, फाइन। तो इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए था, u ऑफ x, 0 का kx, और वही दे रखा आपको k, और इसका सोल्यूशन क्या बताया था मैंने इनिशियल में ही, x माइनस यू टी होना चाहिए ना, और यहाँ पे t की जगह पे y है। मैं आपको दोनों मेथड से करवा देता हूं, फाइन। और लेकिन यहां पे u नोट क्या दे रखा आपको, x, मतलब x माइनस, ये आपके पास इसमें इनिशियल कंडीशन लगा दो अब आप, तो ये लेफ्ट हैंड साइड इज x है, u नोट x इज x, फाइन। तो कितना हो गया आपके पास, फिल कर दो, u विल बी x माइनस यू वाई, सो u कितना आ गया आपका x ओवर 1 प्लस वाई। तो 2,3 पे भी आंसर कितना हो गया, 2/4, 1 over 2 is the right answer. फाइन, वही सेम शॉर्टकट ट्रिक्स मैं अप्लाई रहा हूं। अदरवाइज यू कैन अप्लाई विद दी लैग्रेंज इक्वेशंस, फाइन, dy over 1 du over 0, क्लियरली से u इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, फाइन। कॉन्स्टेंट की वैल्यू यहां पे फिल कर दो, जब कॉन्स्टेंट ही बन गया ये, तो फिर तो मैं कैपिटल डी वाला लगा लू ना, फाइन, ऑफ u इज इक्वल टू 0। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा, फाई ऑफ c1y माइनस एक्स, और x माइनस c1y, फाइन। और c1 की वैल्यू आपके पास क्या है, u, फाइन। तो देखो वही बन गया जो पहले बनाया था। अब आप इस पे इनिशियल कंडीशन लगा दो, फाई ऑफ x, फाइन। तो ये वैल्यू यहां पे फिल कर दो फिर से, सो u विल बी x माइनस यू वाई, फाइन। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये वाला ट्रिक आप हमेशा याद रखिए, ये हमेशा kx की फॉर्म में होगा, और इसका जो सोल्यूशन आएगा वो हमेशा ही x माइनस यू वाई, मतलब कॉफिशिएंट ऑफ द ux का होगा। चलिए, ये कांस्टेंट कॉफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं है, कांस्टेंट नहीं है ना, ये नॉन होमोजीनियस है आपके पास। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ले इसकी, dx ओवर 1 dy ओवर 1 du ओवर e की पावर u। तो पहले दो से x माइनस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और इसकी इंटीग्रेशन e की पावर माइनस यू ओवर माइनस 1 इज इक्वल टू वाई प्लस c2। इसको थोड़ा सही करके लिख लेते हैं, इसको y नेगेटिव को उधर ले जा रहा हूँ, सो e की पावर माइनस ऑफ u प्लस वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये दो सोल्यूशन बन गए आपके, फाइन। तो इसको इस फाई की फॉर्म में लिख लेते हैं, विच इज फाई ऑफ x माइनस वाई। अप्लाई द इनिशियल कंडीशन, u विल बी 1, y विल बी 0, x विल बी x। तो इसका मतलब फाई ऑफ x क्या बन गया आपका, 1 ओवर e, फाइन। तो यहाँ पे फाई की वैल्यू 1 ओवर e फिल कर देते हैं, क्या बन गया आंसर आपका, e की पावर माइनस ऑफ u प्लस वाई इज इक्वल टू 1 ओवर e। सो e रेस टू पावर माइनस ऑफ u इज 1 ओवर e माइनस वाई, फाइन। और ज्यादा सारा लॉग लेना चाहते हो आप, ठीक है, इसको क्लियर कर दे रहा हूं आपके लिए। सो u विल बी माइनस लॉग ऑफ 1 ओवर e माइनस 1 ओवर y इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब देखो 1 ओवर 2e 1 ओवर 2e कितना हो गया, y की वैल्यू 1 ओवर 2 करेंगे, हाफ और हाफ, सो दैट विल बी माइनस माइनस प्लस लॉग ऑफ 2e विच इज नॉट इक्वल टू 1। तो पहला ऑप्शन तो कट गया। आगे है पार्शियल डेरिवेटिव, सो क्लियरली से दिस फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द x, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द u विद रिस्पेक्ट टू x इज 0 फॉर ऑल x, y। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया।
Now you can find the partial derivative with respect to y. So that is a minus 1 over e. यहाँ पे y था ना शायद, तो पिछला फर्स्ट ऑप्शन दोबारा चेक करना पड़ेगा. चलो पहले मैं थर्ड और फोर्थ देखता हूँ. So that will be minus of y minus minus plus 1. So पहले थर्ड ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन दोबारा चेक करेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी ना. फाइन. सो यू वाई 1 over 4e 1 over 4e. So 1 over 4e, that will be 1 over 4. So 3 divided by 4e, that is 4e over 3. So थर्ड ऑप्शन कैंसिल हो गया. फोर्थ ऑप्शन इज x is 0, x तो है ही नहीं, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन. ए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, u इसके अंदर फिल करते हैं, y की वैल्यू 1 over e minus 1 over 2e. So that will be minus log of 1 over 2e, which is not equal to 1. So right answers are B and D are the correct option of the problem. Is it clear students? मैं फिर कह रहा हूं बच्चों बार बार आपको, यू मस्ट वॉच अबाउट माई दिस पीवाई क्वेश्चंस एंड दी थ्योरी लेक्चर्स, तभी आप कंसेप्ट को इजिली समझ पाओ. फाइन. We will see the next lecture very soon on the Charpit methods and the other CSNet. Till then, you can share this video, like and comment on it. Best of luck, students. Happy learning.